RG, next one says lessons from the corporate world, sharing so others don't repeat it. Dear Junaid Bhai, Assalamu alaikum. My name is ABC, originally from Karachi, but currently working or was working in the UK. I've been a long time follower of your work, from your old Facebook rants to your more refined and insightful videos now. Your words have often felt like a dosto wali nudge at the right time. So I thought maybe it's time I share something that might help someone else through your platform. A few months back, I was working as a Salesforce analyst at a firm here in the UK. It was a decent gig at first, but over time, things turned toxic. The company shifted many key roles to their offshore offices in South Asia, especially India, and the new management dynamics became suffocating. Within 6 months, I decided to move on. It just wasn't sustainable anymore. I found a new role in IT consultancy at Accenture. Things looked promising, but before leaving my previous company, I had my exit interview, and here's where the downfall began. In that exit interview, I let my frustration get the better of me. I openly blamed the offshore employees for disrupting workflows, and more recklessly, I even made a poor choice of words for describing those particular people. That was not only inappropriate but also ignorant in hindsight, completely against the values I actually stand for. At the time, I thought I was being honest and brave. In reality, I was being emotional and short sighted. But the crux of that feeling was that certain major decision making roles should stay with white people and should not be handed to people sitting in Bangalore. Soon after, I heard from ex-colleague that my exit interview became the lunchroom gossip. I had unknowingly burned a bridge that today I would do anything to rebuild. Fast forward at Accenture, after 3 months of sitting unallocated, a bench as they call it, I was let go as part of the broader IT layoff. And now, ironically, my previous company is hiring again. But I know there is no way back for me. Definitely not after the repo I left. Junaid bhai, I'm not writing this to rant or look for sympathy. I own my mistake. It's a hard pill to swallow, but an important one. I underestimated how interconnected reputations are in the corporate world. My careless outburst has not only cost me a job, but it's also now delaying my PR process here. I'm sharing this hoping that maybe some young person listening to you, someone just starting out, might learn from my misstep. Speak your truth, but with wisdom. Never burn bridges, no matter how justified you feel in the moment. The corporate world is a chessboard, not a battlefield. Thank you for reading this. If you ever talk about navigating corporate careers, maybe this story could serve एज अ कॉशनरी टेल. सो ये एक भाई है जो कि एक कंपनी में काम करते थे और फिर उस कंपनी ने अपना सेल्स फोर्स के लिए, और फिर उन्होंने जो है इसका एक डिवीजन इंडिया में बेंगलोर में बनाया, और 6 महीने के अंदर अंदर इनको लगा कि डायनामिक्स जो है बड़े सफोकेटिंग हो रहे हैं. सो फिर एग्जिट इंटरव्यू, एक तो इंटरव्यू होता है आपकी जॉब के आने के लिए, एक आपका एग्जिट इंटरव्यू होता है, बिकॉज द कंपनीज वांट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट वेंट रॉन्ग. एक सेकंड यार. सो कंपनीज वांट अंडरस्टैंड कि व्हाट्स गोइंग ऑन, और वहाँ पे आपको थोड़ा स्ट्रेटेजिक खेलना होता है. देखिए, ज़िंदगी में कभी भी कहीं भी अपने ब्रिजेस बर्न नहीं किया करें. हमेशा एक दरवाज़ा ऐसा छोड़ा करें जहाँ से वापसी का रास्ता ज़रूर हो. कॉर्पोरेट वर्ल्ड वैसे ही बहुत छोटी और बहुत ही इंटरकनेक्टेड है. बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, इट्स वन लिंक्डइन पोस्ट अवे. आपका नया एम्प्लॉयर बड़े आराम से आपके पुराने एम्प्लॉयर या एचआर के पास जाके पूछ सकता है कि भाई इन्होंने तो बताया कि इनको he wasn't feeling challenging or motivated enough, that's why he left, but like, do you have anything else to share? And then फिर आपका सारा चट्टा बट्टा खुल सकता है. I'm not sure what's the legality behind sharing those, but people talk. ठीक है, और दुनिया बहुत छोटी है. यू नेवर नो किसका कौन कहाँ क्या काम कर रहा है. और ऑल दीज IT firms, they work in unison, because obviously it costs a lot for a company to hire someone and even to fire someone. So they want to make sure कि they're hiring the right talent. तो कभी भी एग्जिट इंटरव्यू में आउटबर्स्ट करना अच्छी चीज़ नहीं है. अब जैसे इन्होंने, लाइक, फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट बी रेसिस्ट. अब ये वही जैसे एक ईमेल आई थी जो इंडियंस को रंडियंस कह रहा था, वो भी IT फर्म में था गालिबन, दुबई में. सो यू डोंट टॉक लाइक दैट. यू डोंट बी रेसिस्ट टू योर ओन काइंड. एंड जस्ट बिकॉज अगर कंपनी ने डिसाइड किया है कि अपना ऑफिस एक वीकर कंट्री में खोलने का, डजेंट मीन कि वहाँ के एम्प्लॉय इन्फीरियर है. राइट, देयर इज अ रीजन व्हाई दे ओपन देयर. सो like I said, it's a small world. Never burn your bridges. There is always a reference check.
ये चीज़ कभी ना भूलें, हमेशा रेफरेंस चेक होता है. पीपल कम बैक टू योर ओल्ड एम्प्लॉयर्स, पीपल रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन, बिकॉज एंड इन द स्पिरिट ऑफ नोइंग कि कल को इनको भी ज़रूरत पड़ेगी, पीपल टॉक एंड दे वांट टू मेक श्योर कि सही वाला टैलेंट बाहर है. सो आपने जब एक बार इस तरह का कर दिया ना, अब आप कहीं भी जाओगे, दे विल ऑलवेज कम बैक टू योर एक्स एम्प्लॉयर फॉर मोर वेरिफिकेशन. एंड उसमें फिर जब पता चलेगा कि यार भाई ये तो रेसिस्ट है और इन्होंने बोला कि वाइट पीपल के पास डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, हु द हेल आर दीज ब्राउन बेंगलुरुस, तो फिर वो बोलेंगे नहीं भाई, आज की दुनिया में ये सोच वाला इंसान नहीं कर सकता है ना. मुझे हैरत होती है यार, आप यूके भी चले गए हो, सेल्स फोर्स में भी चले गए हो, एंड इफ दिस इज हाउ यू थिंक देन लाइक व्हाट डिड यू इवन लर्न इन लाइफ. खाली वही जो मैं बात कर रहा था कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इज़ ओनली अबाउट, हमारे बच्चे पैदा करने का मकसद यही है कि ये बड़े होकर ये भी बच्चे पैदा करें, और एजुकेशन सिस्टम का मकसद यही है कि बस ये डिग्री ले लें और नौकरी पे लग जाए. व्हाट डिड यू इवन लर्न? अगर इफ़ दैट्स हाउ यू थिंक, एक मल्टी कल्चरल एनवायरनमेंट में, एक मल्टी कल्चरल मुल्क में, you can have reservations. Like, I understand, any Indian employee can be an asshole, any Pakistani employee can be a dick as well. इंडिविजुअली आप करते हो, पूर सबको एक साथ रगड़ोगे ना जब, तो बोलेंगे भाई बायस तुम्हारे अंदर ही है. जब आप सबको एक साथ रगड़ोगे तो यू कैन हैव डिफरेंसेस विद एन इंडिविजुअल कि भाई ये मैनेजर मुझे सही रोल नहीं दिया इसने, या ये नहीं दिया, वो नहीं दिया. दैट्स वन थिंग. ये बोलना कि जी ये सारे ही, ये पूरी कौमियत ख़राब है, दैट सेज अ लॉट अबाउट यू देन इट डज अबाउट देम. सो बायस आप शो करोगे तो फिर यू वोंट गो फार इन लाइफ विद दैट काइंड ऑफ माइंड सेट. इसलिए मैं कहता हूँ भाई, ये नसीम हिजाजी की किताबों से बाहर है कि वी आर द ग्रेट और वी आर द बेस्ट. अगर आप बेस्ट हो तो ये बेस्ट मुल्क छोड़ के भागे क्यों भाई, मुझे तो ये समझ नहीं आता. इफ़ यू आर द बेस्ट एंड दिस इज ऑल द बेस्ट, तो वाई आर यू गोइंग टू दोज काफिर लैंड्स एंड गोरा लैंड्स? सो नेवर एवर सेल्फ सपोर्टाच योर सेल्फ प्रोफेशनली. कॉर्पोरेट सर्कल बड़े छोटे होते हैं, पीपल टॉक और बातें अंदर रहती नहीं है, और आपकी रेपुटेशन जो है आपकी सीवी से ज़्यादा तेज जाती है. इट्स ऑल अबाउट रेपुटेशन. 48 लॉज ऑफ पावर में भी जो एक सब्जेक्ट है, नंबर 6 है, 7 है, आई डोंट नो, इट्स अबाउट रेपुटेशन. योर रेपुटेशन इज एवरीथिंग. अगर वो अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है, अगर वही अच्छी नहीं है तो देन यू हैव नथिंग. यू कैन हैव ऑल द गोल्ड मेडल्स इन द वर्ल्ड एंड ऑल द हाईएस्ट स्कोर्स एंड व्हाट नॉट, डिस्टिंक्शन आई हो आपकी थ्रू आउट योर करियर, थ्रू आउट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, डजेंट मैटर. आपकी रेपुटेशन क्या है, दैट मैटर्स. एंड लाइक आई सेड, जिंदगी इज़ अ वेरी स्लिपरी स्लोप, और ख़ासतौर पे करियर में. लॉट ऑफ माई HR फ्रेंड्स आर लिसनिंग राइट नाउ एंड दे वुड अग्री कि वन केयरलेस कॉमेंट कैन लॉक योर डोर्स फॉर एवर. रेसिज्म हो गया, रीजनलिज्म हो गया, रिजेंटमेंट्स हो गई, दीज आर ऑल वेरी 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 स्लिपरी स्लोप. सो क्रिटिसिज्म प्रोसेस इज़ वैलिड. क्रिटिसिज्म आप बिल्कुल कर सकते हैं, बट नॉट लाइक द वे यू डिड. किसी भी एंटायर ग्रुप को रगड़ देना, इट डीरेल्स योर सेल्फ, आपको ही डीरेल कर देती है वो. फिर आप चाहे सही भी कह रहे हो, मगर द वे यू फ्रेम योर आइडिया और योर थॉट्स, दैट्स व्हाट मैटर्स. कि आप उसको फ्रेम किस तरह कर रहे हो, तो वही डिटर्मिन करता है कि आप पे ट्रस्ट किया जाए या फिर नहीं किया जाए. एंड you're right, the language you used didn't reflect who you are, but the corporate memory doesn't forget. It's like an elephant. वो याद रखती है चीज़ें. So I'm glad you're owning up, and that's the first step into clarity. You've done something most people don't. कि आप admit कर रहे हो और आपने you've opened up, and you want growth and maturity and possibly redemption. So I hope you learn from this mistake, and I hope things get easier for you. But ये कि पिछला जो दरवाज़ा आप बंद करके आ गए, वो तो मुश्किल है. अब इसकी वजह से आपका PR प्रोसेस अफेक्ट हो रहा है, इसकी वजह से आपका करियर ग्रोथ स्टॉल हो रही है, एंड देन लाइक आपके काउंटर पार्ट्स आगे निकल जाएंगे, एंड देन नेचुरली इट वुड फ्रस्ट्रेट यू इवन मोर. सो बी वेरी वेरी केयरफुल. वो कहते हैं ना, मुंह से निकली हुई बोली और पिस्तौल से निकली हुई गोली कभी वापस नहीं आती. बी वेरी वेरी थॉटफुल, और फ्रेम करके जाया करें कॉन्वर्सेशंस, एंड लाइक टॉक टू योर सेल्फ, हाउ डज इट साउंड. ChatGPT से बात कर लिया करें बैक एंड फोर्थ कि मेरा एग्जिट इंटरव्यू है, इफ़ आई से दिस हाउ वुड दिस फ्लाई. ChatGPT आपको बता देगा. नाउ यू हैव अ फ्रेंड, you have a tool, so use it wisely. So don't let the emotions get the best of you. I'm sure you must be a great guy.
इन एवरीथिंग, बट वो होता ना, इंसान अपने मोमेंट से पहचाना जाता है, किस मोमेंट पे वो स्ट्रांग रहा, किस मोमेंट पे वो वीक हो गया। तो वीक नहीं होना, और दैट इज़ द टेस्ट ऑफ योर ग्रिट, दैट इज़ द टेस्ट ऑफ योर स्ट्रेंथ। बस वही नहीं हारना। So, अपने आप को लूज़ नहीं करना किसी भी आर्ग्यूमेंट में, अपना पॉइंट फर्म रखना है और बिल्कुल वॉइस करना है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि अंदर दबा के रखें। इफ यू हैव इट इन यू, पुट इट आउट देयर, बट लाइक मे बी लाइक फ्रेम इट इन अ वे विच इट कि रिजेंटफुल भी ना लगे, लेकिन ये भी लगे कि यू वर हर्ट, और या यू weren't फीलिंग चैलेंज्ड इनफ, या यू weren't फीलिंग मोटिवेटेड इनफ, या आपके स्किल लेवल को उस लेवल पे टेस्ट नहीं किया गया जो आप करना चाहते थे। मेक इट अबाउट योर सेल्फ, डोंट मेक इट अबाउट देम कि उन्होंने ये नहीं किया। मेक इट अबाउट कि लाइक आई कुड हैव डन मच मच मोर हैड द सिचुएशंस बीन लाइक दिस। सो लाइक क्रिएट अ सिनारियो के जहाँ पे आप और अच्छा कर सकते थे। फॉरगेट अबाउट कि उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये कहा। इट्स एन एग्जिट इंटरव्यू, देयर स्टिल देयर। तो दरवाज़ा अपना कभी भी ख़राब ना करें इस तरह का। और कहीं से भी आप उठे तो यही सोच के कि यार कल को यहाँ दोबारा अगर आना पड़े तो मैं शर्मिंदा ना हूँ, तो मैं आराम से आ सकूँ। सो लीव प्लेसेस इन अ मैनर, चाहे वो आपका वर्क प्लेस हो, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप्स हो, लीव इन अ मैनर वेयर देयर इज ऑलवेज अ डोर वेलकमिंग यू अगेन। सो या, आई होप यू लर्न फ्रॉम दिस, एंड आई होप जो दूसरे सुन रहे हैं they also learn from this. Good luck, and I'm glad you're owning up to your mistake, and I hope you don't repeat them. ख्याल रखें, गुड लक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे YouTube चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।